Hello, students of class 12th. I welcome you in today's English lecture. Today I have come with a new lesson of prose, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. A.G. Gardiner. Today, let us learn something about A.G. Gardiner. A.G. Gardiner was born in 1865. He is a famous essayist of the modern age. He wrote many of his essays under the pen name of Alpha of the Plough. He was the editor of a famous London newspaper, the Daily News, for 17 years. So, some of his essays bear the stamp of his journalism, though they are highly enjoyable pieces of brilliant prose. His prominent works are Priests and Kings, Pebbles on the Shore, and Leaves in Wind. He is best known for his delightful essays on a number of subjects, personal, civil, and social. He is a master of personal essays. He writes in a style which is intimate, humorous, and persuasive. Now, about the lesson, A Fellow Traveler. This lesson has been selected from Leaves in Wind, which gave him fame. It recounts a train journey that the author undertook in a slow local train and his encounter with a mosquito. The mosquito was his fellow traveler. In this essay, he develops a feeling of affection for a mosquito, regarding him as a fellow traveler. Though the mosquito troubles the author very much, yet he did it no harm, as he believed that every creature had a right to live. So he followed the principle, live and let others live. Thus, the essay, A Fellow Traveler, takes us through different states of the essayist's mind as he tries to deal with the mosquito. This is why the present essay, A Fellow Traveler, is considered a fine specimen of Mr. A.G. Gardiner by several critics. Now, here comes the lesson. The first paragraph. I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. So in these lines, the writer has tried to prove his ability as a very good, humorous essayist, as previously informed. So, the essays of A.G. Gardiner are always very intimate in style, humorous and persuasive. स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि A.G. गार्डनर, जिनका जन्म 1865 में हुआ था, ये मॉडर्न एज जो इंग्लिश लिटरेचर का है उसके एक बहुत ही अच्छे और मशहूर
एसेइस्ट माने जाते हैं। एसेइस्ट माने समझते हैं ना, जो ऐसे आप लोग लिखते हैं। और ये जो है बहुत समय तक अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ के नाम पर ऐसे लिखा करते थे, अपने नाम से नहीं देते थे। फिर उसके बाद द डेली न्यूज़, एक न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता था लंदन में, वहाँ पर इन्होंने 17 वर्षों तक कार्य किया। फिर उसके बाद जर्नलिज्म में इन्होंने अपना काफ़ी बड़ा नाम कमाया। और इनके जो काम हैं वो हैं, जो इन्होंने लिखा है वो प्रीस्ट एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर और लीव्स इन विंड। तो जो ये लीव्स इन विंड है, इसी का एक हिस्सा है अ फेलो ट्रैवलर, इसी में से लिया हुआ है। और इनकी एक विशेष पहचान ये रहती है कि जो इनके विषय होते हैं ऐसे के, वो पर्सनल होते हैं और सिविल होते हैं और सोशल होते हैं। पर्सनल का मतलब होता है कि किसी से अपना व्यक्तिगत, जिसको कहा जाता है व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा है कि सिविल, सिविल यानी एक ऐसे जनरल चीज़ों के बारे में भी ये लिखा करते हैं जो कॉमन है। और सोशल, सोशल का मतलब सामाजिक, ऐसे विषय को लेकर के, ऐसे सामाजिकता के विषय को लेकर के ये अपने ऐसे को लिखते हैं जो पढ़ने वाले को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और इनके लिखने के स्टाइल में सबसे अच्छी बात यह है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो अपने आप को उससे कनेक्ट करता है। यानी इनकी लेखनी में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को उससे जोड़ने लगता है और भूल जाता है, उन्हीं के लिखे हुई ऐसे में वो खोने लगता है। क्योंकि वो बड़े रोमांचक होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह से लीव्स इन विंड जो ए.जी. गार्डनर द्वारा लिखी गई है, उसी की एक ऐसे है अ फेलो ट्रैवलर। इसमें ए.जी. गार्डनर एक ट्रेन में यात्रा करते हैं जो बहुत ही धीमे चलने वाली ट्रेन है। उसको लेखक ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से ये जो संसार है ये चल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है, इतनी धीमी गति, जिसकी गति दिखाई नहीं पड़ती, बिल्कुल उसी तरह से वो ट्रेन चलती है। और लगभग हर स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ कोई हाथ दिखाता है वो रुकती जाती है। और जिस समय वो ट्रेन में बैठे थे, उस समय ट्रेन पूरी तरह से पैक थी, यानी खूब भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। और धीरे धीरे एक दो करके लोग उतरते चले गए। और जैसे जैसे लंदन का जो आउटर रिंग रोड आया, वहाँ पर आते आते वो अपने आप को एकदम अकेला देखने लगे कि कैरेज में वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं, या वो ऐसा सोच रहे थे कि वो अकेले रह गए हैं, क्योंकि उस कैरेज में एक उनका सहयात्री मच्छर भी था, जिसके बारे में उनको कुछ समय के बाद में उसके उपस्थिति की जानकारी हुई। और हालांकि उसको उन्होंने एक पर्सनालिटी के रूप में लिया। देखिए, मच्छर एक छोटा सा प्राणी है, छोटा सा जीव है, लेकिन उसको किस प्रकार से ए.जी. गार्डनर ने एक व्यक्तित्व बना करके और स्वयं उसके द्वारा प्रभावित होकर ये लेख लिखा है। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन पहले ट्रेन में चढ़ा। ये मुझे कुछ समय बाद ज्ञात हुआ। मैं उस आखिरी ट्रेन में चढ़ा था जो लंदन से मिडलैंड टाउन को जा रही थी। ऐसी ट्रेन जो बहुत धीरे चल रही थी, एक आलसी ट्रेन, हर जगह रुक रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो अनंत में जाना चाहती हो, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रही थी। साथ ही जब मैं चढ़ा, वो
बर्दाश्त करने योग्य भीड़ से भरी हुई थी और एक दो करके जैसे जैसे सब अर्बन स्टेशंस आते गए यात्री मेरे उतरते गए और आखिर में आउटर रिंग ऑफ लंदन जब बचा तो मैं ट्रेन में अकेला था, या मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ट्रेन के कैरेज में अकेला हूँ। तो बच्चों, ये आज का नया लेसन है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए आपसे बातें नहीं हो पाई, मैं लेक्चर्स नहीं दे पाई, कुछ कारण था। तो अब क्योंकि और कारण ये था कि सिलेबस बदल रहे थे इंग्लिश के, तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 12th क्लास का भी सिलेबस चेंज हो जाए और हम लोगों को और आपको दोहरी मेहनत करनी पड़े। तो इसीलिए कुछ समय के लिए उसको रोका गया था, लेकिन अब क्लियर हो गया है और आप लोगों में किसी भी तरह का जो सिलेबस मैंने शुरू में लिखवाया है, जैसे क्वेश्चन पेपर मैंने लिखवाया है, जिस तरह से उसका पैटर्न है, जैसे उसके मार्क्स हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है जैसे आप कर रहे थे। तो इसीलिए आज से ये नया लेसन शुरू कर दिया है। जो एक पैराग्राफ दिया है इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो एक्सप्लेनेशन बताई है उस एक्सप्लेनेशन को रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरह से लिख करके और मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करें चेक होने के लिए। हर लड़की अपना नाम, क्लास, सेक्शन कॉपी के प्रिंट के साथ भेजेगी ताकि मैं अपने रजिस्टर में उस डेट पे वो मेंशन कर सकूं कि कौन सा काम किस लड़की ने किस सेक्शन की चेक कराया है। Because I want every student of class 12 to be updated with my lectures, and I am performing my duty, and please you also perform your duty sincerely, that is learning English literature. So for today this much only. Thank you children. I'll come with my next lecture very soon. So once again, thank you.